नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। पीएम ने बैरकपुर में विशाल विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। कहा, बैरकपुर की भूमि बंगाल में बदलाव का मार्ग कर रही है प्रशस्त। रैली के बाद पीएम का मेगा रोड शो। दूसरे चरण के मतदान के लिए ममता बनर्जी ने भी लगाया जोर। डोर टू डोर कैंपेन से अपने पक्ष में जुटा रही हैं जनसंपर्क। अभिषेक बनर्जी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कांग्रेस द्वारा भी लगाया जा रहा है पूरा दमखम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हुए हस्ताक्षर। अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को $5 अरब तक पहुंचाना है लक्ष्य। आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए 7 राज्यसभा सांसदों के विलय को मिली मंजूरी। 245 सीटों वाले ऊपरी सदन में भाजपा की सदस्य संख्या बढ़कर हुई 113। अमेरिका ईरान जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हुई एंट्री। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। पुतिन से करेंगे मुलाकात। ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव। तो बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में के साथ में लाइव। First invite Ms. Aparna Sharma, Additional Secretary, Department of Fertilizers, to share her remarks. Thank you, ma'am. Good afternoon. Namaskar. On behalf of Department of Fertilizer, I would like to apprise the gathering that the fertilizer availability remains robust and the supplies continue to exceed the requirement. The Department of Fertilizer reaffirms the fertilizer security, which is strong, stable, and well managed, with availability consistently exceeding the requirement across all major fertilizers, and no shortages have been reported so far. The strong supply position in the Kharif season, I would like to give some facts about it. For the period from 1st April to 26th April, the availability remains substantially higher than the requirement. Urea availability is 71.58 LMT against a requirement of 18.17 LMT. Similarly, DAP availability is 22.35 LMT against 5.90 LMT across the country. We have seen that there is a strong opening position in all the fertilizer in the ongoing Kharif season. Further reinforcing our preparedness for the Kharif 2026, the fertilizer requirement has been assessed at 390.54 LMT, against which our stock position is 190.21 LMT, which is about 49% of opening stock is already available, which is supposed to be usually 33%. So against 33%, already 49% stock is available. This is also supported by advanced stocking, efficient logistics, which has been managed very well so far. To ensure sustained availability, the government has already diversified its import sources, and if any shortfall, wherever any shortfall has been noticed, it has been overcome with strong our diversified portfolio and imports. In the urea sector, global tender, already 13.07 LMT of urea was secured in the month of February, and now tender of 25 LMT of urea has been successful, and we'll be getting the supplies shortly, which will start in the month of May. 25. MRP of all major fertilizer remains the same. There is no change. Urea continues at rupees
266.5 per 45 kg bag. DAP continues to be at 1350 per 50 kg bag. The domestic production also, which is even after the crisis, we have been able to manage a very strong position. The production of urea since March, in March and April, has been very good and robust. The issues relating to natural gas availability for domestic urea production have also been addressed with a steady supply of gas, and are presently 97% LNG, RLNG is available to the fertilizer plants. तो भारत सरकार के प्रयासों से घरेलू उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है. Further, I would like to apprise that the global tender for other than urea fertilizer, such as DAP, TSP and ammonium sulfate, also has been floated based on the aggregated demand of the companies, and already 12 LMT DAP, 4 LMT TSP and 3 LMT ammonium sulfate has been floated last Friday. This will help to ensure adequate availability during the peak season. So at present, we don't foresee any major issues in the availability of inputs as well as for finished fertilizer. On the review front, 6 meetings of the empowered group of secretary, of which our department is leading the way, have already been held by Secretary Fertilizer to ensure adequate availability of fertilizer, as well as any issues which are to be addressed, any challenges, they are immediately addressed. The Indian fertilizer security remains strong and stable. Thank you. Thank you. I now invite Ms. Sujata Sharma, Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, to provide updates on the fuel supply situation. नमस्कार. जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं, परंतु भारत सरकार की यह कोशिश रही है कि घरेलू एलपीजी, पीएनजी उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह 100% प्रोटेक्ट करते हुए सप्लाई इंश्योर की जाए, और ये किया गया है. इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन भी 70% तक इंक्रीज़ किया जा चुका है. अभी भी कई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर पैनिक बाइंग दिख रही है. मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई है और इसके चलते किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है. 93% सप्लाई डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है, और इसका महत्व यह है कि डाइवर्जन को रोका जा सके. इसके अलावा कल रविवार होने के बावजूद भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एलपीजी के सिलेंडर्स की डिलीवरी की है. कमर्शियल एलपीजी के संबंध में अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,65,600 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है. मार्च के महीने में यह अमाउंट 1,29,500 टन के करीब थी. इसी तरह ऑटो एलपीजी अप्रैल के महीने में अभी में 386 टन पर डे के हिसाब से सेल हो रही है, जबकि यही अमाउंट जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे थी. तो आप देखते हैं कि ऑटो एलपीजी की सेल भी पीएसयू ओएमसीज के द्वारा लगभग दुगनी की जा रही है. 5 किलो के सिलेंडर के संबंध में भी 1 अप्रैल से अभी तक 19.5 लाख से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है. 9,080 से अधिक अवेयरनेस कैंप हुए हैं, और इन कैंपों में लगभग 1,46,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है. कल भी 110 कैंप हुए हैं, और इन कैंप्स में 3,430 सिलेंडर की सेल हुई है. नेचुरल गैस के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार की ये कोशिश है कि पीएनजी नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाए. इसके चलते मार्च महीने से अब तक लगभग 5,52,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है. इसके अलावा 2,63,000 नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, और
6,21,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स भी पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर हुए हैं। अभी तक लगभग 42,600 से अधिक पीएनजी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। पेट्रोल पंप पर भी कोई सप्लाईज सभी नॉर्मल है, लेकिन कुछ जगह पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है, जिसकी वजह से इंटरमिटेंटली कुछ प्रॉब्लम जो आ रही है उसको तुरंत सॉर्ट आउट भी किया जा रहा है। मैं दोबारा से ये सभी से प्रार्थना करूंगी कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी नॉर्मल है। कृपया पैनिक बाइंग से और अफवाहों से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही क्रय करें। एनफोर्समेंट एक्शन भी जारी है और कल लगभग 1800 जगह पर इंस्पेक्शंस या रेड की गई हैं। पीएसयू ओएमसीज के द्वारा भी अब तक लगभग 310 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई है और 71 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड किया जा चुका है। अंत में अपनी बात को मैं दोहराते हुए आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और ज़रूरत के हिसाब से ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। धन्यवाद। Thank you. I would next invite Shri Mandeep Singh Randhawa, Director, Ministry of Port, Shipping and Waterways, to share updates on shipping related issues. नमस्कार। 25 अप्रैल 2026 को एक टोगो फ्लैग्ड केमिकल टैंकर MT सिरोन से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, जिसके टोटल क्रू में कुछ भारतीय नाविक भी हैं। ये घटना शिनास आउटर पोर्ट लिमिट ओमान से हुई है। ये जहाज़ कुछ अन्य जहाज़ों के साथ गुजर रहा था, जिसको ईरानियन कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्ट करने को कहा और उन्होंने वार्निंग शॉट्स फायर किए। सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय लगातार विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और मैरीटाइम स्टेक होल्डर के साथ संपर्क में है और नाविकों की सुरक्षा और मैरीटाइम ऑपरेशन सुनिश्चित के लिए वचनबद्ध है। क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में किसी भी इंडियन फ्लैग वेसल से जुड़ी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई। डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम के एक्टिवेशन के बाद अब तक 7,780 कॉल्स और 16,650 से अधिक ईमेल्स हैंडल किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25 कॉल और 140 ईमेल प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने डीजी शिपिंग के माध्यम से अब तक 2,770 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है, जिनमें से 12 नाविकों को पिछले 24 घंटों में गल्फ क्षेत्र से के विभिन्न स्थानों से वापस लाया गया है। भारत की सभी बंदरगाह सामान्य रूप से ऑपरेशन कर रही हैं और किसी भी पोर्ट पे किसी तरह की कंजेशन की कोई सूचना नहीं है। धन्यवाद। Thank you. I now invite Shri Randhir Jaiswal, Additional Secretary XP, Ministry of External Affairs, to share updates on the developments in the Gulf region. Thank you, ma'am. On the direction of the Prime Minister, India has continued to expand its outreach to countries in the Gulf region. We had the National Security Advisor, Shri Ajit Doval, paying an official visit to the UAE on 25th and 26th of April. He called on the President of the UAE, where he conveyed the greetings of our Prime Minister to him, and both sides discussed measures to further deepen India-UAE comprehensive strategic partnership. They also discussed the regional situation as also other issues of mutual interest. Let me remind you that this marks the second high-level visit from India to the UAE within a month. Earlier, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, he had visited UAE on 11th and 12th of April. He met his counterpart in the UAE, as also called on the President of the UAE, wherein he conveyed gratitude for ensuring the well-being of the Indian community during the conflict. EM also thanked the President for his guidance to further strengthening of the India-UAE comprehensive strategic partnership. Thank you. Thank you. I invite next Shri Asim R. Mahajan, Additional Secretary Gulf, Ministry of External Affairs, to share additional updates on the situation in the Gulf region. Good afternoon.
Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the Indian community in the region. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of the Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region to various destinations in India. Since February 28th, around 13,19,000 passengers have traveled from the region to India. Airlines continue to operate limited commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 105 flights are expected to operate from the UAE to India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. Qatar airspace is partially open. Qatar Airways is operating flights to various destinations in India. Air India and Indigo are also planning to resume flight operations from Qatar to India soon. Kuwait airspace is open. Jazeera Airways and Kuwait Airways have resumed limited flight operations from Kuwait to India. Bahrain airspace is open. Gulf Air is operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open for cargo and chartered flights. We have advised Indian nationals to avoid traveling to Iran and urge those already there to leave via land border routes with our embassy's support. So far, our embassy in Tehran has facilitated movement of 2,461 Indian nationals out of Iran through land border routes. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in India, to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you for the updates. With this, the floor is now open to questions. We could start from the left. Number 3. Hi, Sukal from the Indian Express. A couple of questions for Mandeep sir first. So the update that you gave about that ship that was intercepted by the Iranians, if you could provide us more details about, A, how many Indian seafarers were there on board, what was the name of the ship, and I believe you said it was a Togo flagged vessel. The other question again is the fact that is about the ships, again foreign flagged ships that had come under Iranian fire and were, a couple of them had even been seized by the Iranians last week. Two of the 3 ships that had come under fire had Indian seafarers. One had 22, one had one Indian seafarer. If you could provide us an update about their well-being, what is their status, of the ships as well as the Indian seafarers on board. And just also wanted to understand, it's been about 10 days since the last Indian flagged vessel moved from the Persian Gulf, to the east of the Strait of Hormuz. And after the attack or the fire upon the Salman Herald and the other ship, the Indian ships seem to have gone deeper into the Persian Gulf. And so if you could give us an update on when we can expect the next movement to be. Number 194.
Thank you. Amar Zadi from PT. My question is to Department of Fertilizer. Ma'am, can you give us an update of the total imports that we are likely to see in the whole of the season for both urea and other fertilizers? Thank you. 161. Yeah, just a follow-up to Amar's question for Aparna ma'am. Ma'am, could you provide details on the tenders that we are planning to float for the fertilizers? And for Sujata ma'am, over the weekend we saw several fuel outlets. The media reports that 10% of the outlets in Andhra Pradesh, they ran out of fuel. There was no petrol and diesel availability. Today there was a tweet by the minister saying that Uttarakhand chief minister met him. So can you please provide some details on the availability of the diesel and gasoline at the fuel stations as to what type of stocks they are holding, and in case we are planning to import diesel and gasoline in case we are running short of those products? Thank you. 145 at the back. Thank you for letting me ask a question. I'm Tuesh from Economic Times. Sir, can we expect any updated advisories? Could you mention, please, to whom the question is being addressed? I think Mandeep, sir. Okay. Sir, can we expect any updated advisories for Indian seafarers in light of the escalated tensions, considering that non-Indian flagged vessels are being attacked? So, can we expect any advisories to ensure their safety? And also, sir, has DG Shipping spoken to any of the state governments and their maritime boards regarding passing over of concessions that were decided earlier? 127. Hi, Deepika from ANI. So my question is from Aparna ma'am. According to some of the media reports, that it is saying that India to purchase fertilizer, that is urea, at nearly double of the pre-war prices. So your stand over it, clarification. 25. Hello, Rituraj from Mint. My question is for Petroleum Ministry. Following up on what Rakesh ji has asked, these reports of about 421 petrol pumps being shut in Andhra Pradesh, what step is the Petroleum Ministry considering to avert such instances of panic buying? And what's the current stock in terms of petrol and diesel? Next is 214. थैंक यू सर। रणधीर सर से मेरा सवाल है। रणधीर सर, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के संकट के बीच ब्रिक्स समिट पर भी निगाहें हैं भारत की मेज़बानी में, और 23 और 24 अप्रैल को दिल्ली में जो डिप्टी विदेश मंत्रियों स्पेशल दूतों की जो बैठक हुई है, इसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आया है, क्या इसके पीछे वजह रही है? नेक्स्ट इज 51. This is Sandeep Das from Financial Express. This is to Aparna ma'am. You said that about 39 million tons requirement for the fertilizer. Out of that, I think 18 million ton is the urea, and your stock is about 7 million ton currently. So how do you bridge this gap of about 10 million ton with the tenders? And second point is that you said with the restoration of LNG, the urea production has gone up. How much has gone up in April? And can you give us this tender thing about DAP? How much is the DAP SSB tender floated? Next is 243. Shine Mohan from Mathrubhumi. Sujata ma'am, about 42,000 PNG consumers are surrendered their LPG cylinders. How many PNG consumers are still holding their LPG cylinders? Coming to the center, 187. I am Akhilesh Suman from DD News. My question is directed to Randhir Jaiswal, sir. Sir, is it true that India has diluted its long-standing position on Palestine during the recent BRICS MENA meeting? And is it also true that India's refusal to mention East Jerusalem as capital of Palestine has led to lack of consensus for a joint statement? What is the factual position? And sir, I have another question, just because, you know, the sanction waiver of America against Chabahar port, the period is over. So what is its latest status and what is the update? 207 on the left. You already asked. Anybody on the right side? Any questions? So I would now invite the officers.
Yeah, 76. Hi, this is Sapna from CNBC TV 18. My question is to Department of Fertilizers. We just wanted to get an idea about the cost escalation that we have been witnessing since last 2 odd months, since the West Asia crisis broke out in terms of what import costs. How much have they gone up by, especially for urea as well as non-urea? So if there are no further questions, I would now invite the officers one by one in the same sequence as earlier to respond to queries from the media. I first invite Ms. Aparna Sharma, Additional Secretary, Department of Fertilizers, to respond to the queries, please. Thank you, ma'am. Yes, I think the first question that was asked about the total imports of the season. So the total imports of the season going by in urea, the total imports are likely to the tune of 64 LMT during the Kharif season. And we'll assess the situation again and again and rework it. And likewise in the other areas like DAP and NPKs also, we'll assess the domestic production and will be going in for imports. Already we have floated the tender, or aggregated tender on behalf of the companies have been floated by them and in DAP, TSP and ammonium sulfate. The amount is 12 LMT for DAP, 4 LMT for triple superphosphate and 3 LMT, which is a good substitute for urea, that is for 3 LMT. And that has been done on last Friday. Regarding the cost, yes, of course, the price of urea that we have discovered through the global tender has almost doubled. So, and the price of other fertilizer has also increased. So that's a fact, and in case of gas also the prices have increased from about, which is almost double, then the other question that was asked about the requirement versus the availability. So urea availability, that we have already informed you that it is 71.58 LMT for the Kharif season against a requirement of, the present requirement of 18.17 LMT, which is for the month, and DAP availability is 22.35 LMT, MOP availability is 12.46 LMT, and SSP also availability is 26.26 LMT for the Kharif season. So this it clearly indicates a strong opening position for the upcoming Kharif season, and the supplies are exceeding the demand across all the nutrient categories for the country. Thank you. I now invite Ms. Sujata Sharma, Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, to respond to the queries, please. So the first question was regarding certain retail outlets, stock situation in certain retail outlets in Andhra Pradesh. So I want to bring it to your notice that we have observed exceptional growth in certain areas, like 30 to 33% in the HSD sale, and this is primarily, that is the reason why certain ROs have faced the situation with respect to the availability of the stock. But we are monitoring the situation, and I'm sure by today evening all the stocks will be available at all the retail outlets. As far as the supply of diesel and petrol in the country is concerned, I want to re-emphasize and I want to inform all of you that we have sufficient stock, and sometime because of the panic buying there may be issue, but then that issue is also taken on priority and is resolved, and we don't foresee any situation where we have to go for an import of petrol or diesel. So see, we are in touch with the state government, and through this press conference also I am trying to inform everybody that they should not believe the rumors. We have sufficient supplies and the purchase should be as per the need.
Regarding the visit of Honorable Chief Minister Uttarakhand with Honorable Union Minister Petroleum and Natural Gas, the discussion was regarding, it is already there in the tweet, and it was regarding the supplies during Char Dham, and Honorable Minister Petroleum and Natural Gas has ensured all support required. Regarding PNG connection, the consumers with the PNG connections holding LPG connection, I want to reiterate that there is already an order which says that anybody who is having a PNG connection shall surrender it. And through you, I again, emphasize on the same point. And the assessment is also going on regarding the consumers which are having both PNG and LNG, PNG and LPG consumer. And that's all. Thank you. Thank you. I request Director Shipping for his replies. जैसे कि आपने नंबर ऑफ इंडियन सीफेयरर्स का पूछा था, जो फॉरेन फ्लैग्स है इसमें टोगो फ्लैग्ड वेसल्स है, इसमें 17 इंडियन सीफेयरर्स है, सारे के सारे इंडियन सीफेयरर्स सुरक्षित हैं और बाकी भी जितने भी फॉरेन फ्लैग्स पे इंडियन सीफेयरर्स हैं वो सुरक्षित हैं। और एक एडवाइजरी का आपने पूछा था, टाइम टू टाइम डीजी शिपिंग एडवाइजरीज इशू कर रहा है और जो हमारा डीजी कंट्रोल रूम है वो 24/7 एक्टिव है और जो मेल्स या फ़ोन के थ्रू जो भी सीफेयरर्स कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सीफेयरर्स है वो भारत सरकार की टॉप प्रायोरिटी है, तो उसमें हम समय समय पे एडवाइजरीज भी इशूज़ कर रहे हैं और इनसे टच में भी हैं। दूसरा आपने पूछा था कि जो कंसेशंस हैं वो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स ने, जो मेजर पोर्ट्स ने कंसेशन पास किए हैं, मंत्रालय जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के भी टच में है और वही कंसेशंस जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के पोर्ट्स हैं उन्होंने भी ट्रेड को पास किए हैं। बेशक वो स्टोरेज चार्जेस में कंटेनर के कंसेशन है, जहाँ प्लग इन चार्जेस में, तो उन्होंने भी ये कंसेशंस ट्रेड को पास किए हैं। थैंक यू। MT सिरोन, सिरोन, CHI। Thank you. वो तमाम सीफेयर सेफ हैं। So moving ahead, thank you. I request Shri Randhir Jaiswal, Additional Secretary XP, to kindly respond to the queries addressed to him. So first, Akhilesh, coming to your question related to BRICS MENA meeting and our position on Palestine, let me clarify the issue for you and for others here. We have seen some speculative and inaccurate reporting on the recent BRICS officials meeting. I would refer you to the joint statement released on the occasion of the India-Arab League Foreign Ministers meeting earlier this year. This meeting happened in Delhi. This outcome was endorsed by all present, including Palestine. It may be noted that many BRICS members also attended the Sharm el-Sheikh summit, supported the Gaza peace plan, as well as UN Security Council Resolution 2803. Differences at the recent BRICS meeting were on account of the ongoing conflict in West Asia. Your question regarding Chabahar, an update as to where we are. This issue is under discussion with both Iran and the United States. Obviously, the current conflict is also a complicating factor. We will keep you posted as the situation evolves. एक सवाल आपका था प्रदीप, ब्रिक्स मेना मीटिंग को लेके। वो मीटिंग जैसा कि आप जानते हैं पिछले सप्ताह दिल्ली में हुई थी। उस मीटिंग के बाद एक चेयर समरी जारी किया गया, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हो पाया और जॉइंट स्टेटमेंट इसलिए नहीं हो पाया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेके आम सहमति जो सदस्यगण हैं ब्रिक्स मेना मीटिंग में आए सदस्यगण, उन पे सहमति, उनके साथ सहमति नहीं बन पाई। धन्यवाद। Thank you. I request Shri Asimar Mahajan, in case he would like to add something to the queries addressed to MEA. Thank you. Okay. So, any questions? Any other questions? Yes, here, please.
number 76, and you could also mention to whom you are addressing the question. Thank you very much, ma'am. Sapna again, to Department of Fertilizer. Ma'am, just wanted to understand, I know it's very early, the financial year has just opened, the first month is not even over. But any kind of anticipated, increase on the subsidy bill that you're expecting, like, 6 months, 8 months down the line? We have seen some subsidy allocation going up for non-urea as of now. So any back of the envelope estimates or any perspective on that front? Yeah, yes, of course, as I have already informed, the price of urea, like we had a tender in February and now we had in March, in April. So now the prices have almost doubled. But then there is no change in MRP of fertilizer, so that is a fact that has to be taken with that. And the government is, like we have been communicating with our sister department, expenditure, about the finances, and we have been told that we can keep them informed, and there is no issue on that. Yeah, additionality. Yeah, of course, there are going to be additionalities, and as we go through the year, so we'll be communicating with the Department of Expenditure, Ministry of Finance again and again about the finances part. हिंदी में मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगी ब्रीफ. She will communicate it subsequently, she said. In Hindi, yeah. In Hindi. Any other question? Number 51. I asked about that, what is the production this month of urea? And you said import will be 6 million ton, roughly, urea. How do you, rest of the thing is, we assume it come from the domestic production? That figure actually, you said 6 million ton of urea will be imported during the season. And because our demand is something around 17, 18 million ton in Kharif. So how do you bridge that, the rest of the 2.5 million ton tender has been done. So how do you bridge that rest of the? So we initially during the month of March, because of the force majeure and other reasons, there was a dip in the production. But now we have done all that, we have taken all measures to import gas, even if it is at the higher cost, through our empowered pool mechanism, and with that we have been able to make over. Now the availability of gas with the urea units, which was earlier around 64%, it is now almost 97%. So our production has been very good after that. And after the crisis, the production of urea has been 35.42 LMT. So that is a very good figure. And the imports also, 9.4 LMT of imports have reached our shores. And another 25 LMT that I have told you is already tied up. So I'd like to inform the gathering that most of these imports are out of SOH, that is out of the Strait of Hormuz. So we are very much sure that we'll be getting the supplies timely as per the indicated timelines. Thank you. So thank you. With this, we come to the end of the briefing. I thank the officers for sharing the updates today, and thank you all for joining. तो अब देख रहे थे सीधा प्रसारण अंतर मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि पश्चिम एशिया में जो संकट है उस विषय पर आधारित थी, और किस तरह से देश में चाहे वो पेट्रोलियम की बात हो, चाहे एलपीजी का संकट हो, उन सब से किस तरह से निपटा जा रहा है और किस तरह से स्थितियों को नियंत्रण में लिया गया है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। उर्वरक का भी किसी तरह का संकट नहीं है, उसका उत्पादन लगभग 70% लगातार चल रहा है। तो इन सारी स्थितियों पर विस्तार से तमाम मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन के दौरान बैरकपुर में रैली की, और इस रैली में राज्य के साथ अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल से उनका रिश्ता राजनीति से परे है। पीएम मोदी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत की दिशा और विकास को भी प्रभावित करेगा।
बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है। बंगाल की इन रैलियों में, रोड शो में मुझे इतने अपनत्व भरे संदेश मिले हैं, भांति भांति की तस्वीरें मिली हैं कि मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता। मेरा मोदी जी को देखकर इतनी हौसला बढ़ गई थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं मोदी के पास जाने के लिए तड़प रही थी जे मैं एक बार उसका पैर छू लूं। मेरे लिए वो भगवान है। मैं उस अपनी छोटी बहन को क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उसे वहां मिल नहीं पाया। मैं उसकी भावना की कदर करता, उसके विश्वास का मैं आदर करता, और मुझे विश्वास है कभी न कभी उस बहन से मिलना हो ही जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार की अपनी अंतिम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनात्मक संदेशों के जरिए राज्य के साथ अपने लगाव की बात को रखा। उन्होंने रैली स्थल पर ही बैरकपुर का जिक्र ये कहकर किया कि इस धरती ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को ताकत दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वोत्तर के विकास से ही देश का विकास संभव है और इसके लिए जरूरी है कि बिहार और ओडिशा की तरह बंगाल में भी भाजपा की सरकार हो। जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग, बंग और कलिंग, इस स्त्री शक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, बेहाल औद्योगिक हालात, महिला सुरक्षा और पलायन के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में टीएमसी का महाजंगल राज चल रहा है। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। आप सोचिए, आपको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। तो फिर नई फैक्ट्री और कारखाने लगाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। इसलिए टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा। बंगाल के युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 5 गारंटी भी दी, जिसमें प्रमुख रूप से सरकारी भर्तियों के समय पर निकलने, खाली पड़े सरकारी पदों को तेजी से भरने, कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा दिए जाने की बात शामिल है। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें बंगाल के नव निर्माण का मंत्र बनाना है। मैं बंगाल के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं, हम सुजलाम सुफलाम को नीति बनाएंगे, शस्य श्यामलाम
को रोजगार की प्रेरणा बनाएंगे, मलय शीतलाम को सुख समृद्धि का स्रोत बनाएंगे और दुर्गा की शक्ति को सुरक्षा और न्याय की गारंटी बनाएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार इंद्रनील खान के समर्थन में एक विशाल रोड शो आयोजित किया। रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी उत्साह देखने को मिला। लोग अमित शाह और भाजपा के पक्ष में नारे लगाते हुए रोड शो में शामिल हुए। अमित शाह ने जनता से बीजेपी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार अनुपम विश्वास के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की नीतियों का प्रचार किया। रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी उत्साह देखने को मिला। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर पश्चिम बंगाल से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल के गोघाट में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के दौरान हिंसा भड़क गई, जब बाइक रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी समर्थकों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में बीजेपी के करीब 30 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में आरामबाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद तब बढ़ा जब बीजेपी कार्यकर्ताओं और तृणमूल समर्थकों के बीच झड़प हो गई। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ये हमला तृणमूल के नेताओं द्वारा किया गया है। भाजपा नेता प्रशांत दिगार की गाड़ी पर भी हमला किया गया और इस हमले के लिए तृणमूल नेता संजय खान को जिम्मेदार ठहराया गया है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार जारी हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को काबू में करने की कोशिश की है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र 8 चुनावी जिलों में आते हैं, जिनमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्व वर्धमान शामिल है। बंगाल के दूसरे चरण के लिए 1448 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण में मतदान के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93.19% मतदान दर्ज किया गया था। 4 राज्यों केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए मतगणना 4 मई को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिन के दौरे पर आज हिमाचल प्रदेश पहुंची। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक वे शिमला, अटल टनल और पालमपुर यूनिवर्सिटी जाएंगी। 29 अप्रैल को राष्ट्रपति शिमला से अटल टनल रोहतांग जाएंगी, जहां वे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद शाम को वे वापस छरबड़ा स्थित रिट्रीट लौटेंगी। 30 अप्रैल को राष्ट्रपति पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और उसी शाम शिमला वापस लौटेंगी।
1 मई को शिमला में एट होम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। 1 मई को राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली लौट आएंगी। आपको बता दें कि शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित छाराबड़ा में राष्ट्रपति निवास रिट्रीट है। परंपरागत रूप से राष्ट्रपति यहां ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ठहरते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 2 बार शिमला का दौरा कर चुकी हैं। और देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी के साथ साथ लू के प्रकोप से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। देश में सबसे अधिक तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस अकोला में दर्ज किया गया। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ अलग अलग इलाकों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जिसके बाद इसमें कमी आएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने 27 अप्रैल से 3 दिन तक हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है, जिससे आंधी, तूफान और बारिश के साथ लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 30 अप्रैल से 2 मई के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह असम और मेघालय में 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 अप्रैल से 1 मई तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 28 अप्रैल से 1 मई के दौरान भी कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है और महाराष्ट्र के अकोला में सर्वाधिक तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते रविवार को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रह चुका है। इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में भी पारा सामान्य से 3.1 से 5.0 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। उत्तर और मध्य भारत के अलावा दक्षिण भारत के कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ है। केवल पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में फिलहाल मौसम का मिजाज थोड़ा शांत है, जहां तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। और पूरा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत इस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहा है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार के मुताबिक कल से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होगा। मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में आज तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास रह सकता है। हालांकि कल तापमान में 1 डिग्री की कमी आ सकती है। दिल्ली एनसीआर के लिए 29 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं और कल से स्लोली ये टेम्परेचर्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि एक हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आज से हिमालयन रीजन को इम्पैक्ट करेगा और कल से प्लेन्स को उसको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एनसीआर दिल्ली की बात करें, आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टेम्परेचर्स हैं 42 to 44 रहेंगे। कल 1 डिग्री फॉल हो जाएंगे। सेंट्रल इंडिया में जो हीट वेव कंडीशंस हैं आज और कल रहेंगी, उसके बाद वहाँ भी थंडरस्टॉर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल से हमारा अनुमान ये है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, वहाँ भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रह सकता है, जिसके लिए हमारा परसों एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य प्रोफेसर गोवर्धन दास से मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने उनकी जीवन यात्रा को प्रेरणादायक बताया और सार्वजनिक स्वास्थ्य और इम्यूनोलॉजी में उनके योगदान की सराहना की। इस मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज सुबह प्रोफेसर गोवर्धन दास जी से मुलाकात हुई। उनकी निजी जीवन यात्रा बेहद प्रेरणादायक है। उन्हें जिन भी संघर्षों का सामना करना पड़ा,
उनसे समाज की सेवा करने और उसे कष्ट मुक्त बनाने का उनका संकल्प भी मजबूत हुआ है। ये बात सार्वजनिक स्वास्थ्य और इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान में साफ झलकती है। उनका समृद्ध कार्य और विद्वता हमारी नीति निर्माण की संरचना को और भी समृद्ध बनाएगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक की यात्रा पर जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने एक्स पर इस दौरे की जानकारी साझा करते हुए लिखा है, किर्गिस्तान के बिश्केक के लिए रवाना हो रहा हूं। कल आयोजित होने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए बेहद उत्सुक हूं। मैं वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करूंगा। साथ ही विश्व में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों के बीच आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की भारत की लगातार बनी हुई नीति को भी सामने रखूंगा। इसके अलावा मैं एससीओ के अन्य सदस्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करूंगा और बिश्केक में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में महिलाओं के साथ संवाद किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के 70 सालों तक राज किया देश पर, लेकिन महिलाओं के 33% आरक्षण का हमेशा विरोध किया। कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पीएम इंदिरा गांधी, पीएम राजीव गांधी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परिवारवादी और महिला विरोधी पार्टी बताया। कांग्रेस ने लंबा समय तक सरकार चला। पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। उनने विरोध करा जी, नहीं होने दिया। फिर उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी तो किसने विरोध किया? कांग्रेस ने। नेता कौन थी? इंदिरा गांधी। फिर उनके बेटे आए, राजीव गांधी। उनकी मेजोरिटी थी बहुत बड़ी। उन्होंने भी महिला आरक्षण दिया क्या? नहीं दिया। पार्टी रूल था ना, उनका फैमिली रूल था। बात समझ में आ गई ना? फैमिली, ये फैमिली ट्री नारी विरोधी है। और गुजरात का रण और क्रीक एरिया हमारी थल सेना के लिए विशेष चुनौतियां पेश करता है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने गुजरात का दौरा किया और वहां फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या तैयारियां की थी, उस पर यह रिपोर्ट फाइल की है। हमारी भारतीय फौज या थल सेना जंगलों पे, पहाड़ों पे, गर्म रेगिस्तान पे, ठंडे रेगिस्तान पे और एक ग्लेशियर पर भी तैनात है। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल एनवायरनमेंट है, बहुत ही स्पेशल टेरेन है जो कि है रण और क्रीक सेक्टर गुजरात का, वहां पर भी तैनात है। इस वक्त मैं एक क्रीक पर हूं जो गुजरात की तट पर है। यहाँ पे अरेबियन सी जो है वो जमीन के अंदर कोस्टलाइन पे आता है और बहुत ही मार्शेस यानी कि दलदल जैसा जमीन बना देता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे इंसान का चलना और मशीन्स या कि व्हीकल्स का चलना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी यहाँ तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। आज अगर यहाँ हाई टाइड होती तो पानी शायद मेरी कमर तक होता, लेकिन ऑब्वियसली आज लो टाइड है तो पानी रिसीड किया हुआ है। पीछे आप मैनग्रोव्स भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह के टेरेन की यूनिक जो चैलेंज होते हैं उसमें अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए होती है, अलग तरह के वेपन और अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं। इस चैलेंज के लिए हमारी भारतीय फौज हमेशा तैयार रहती है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में। ऑप सिंदूर के दौरान मेरी ब्रिगेड रन और क्रीक सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत थी और हमने जानबूझकर डिप्लॉयमेंट को बैलेंस रखा ताकि हम एक सुदृढ़ डिफेंसिव ग्रिड को बनाए रखें और उसी के साथ साथ ये काबिलियत भी रखें कि अगर कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है तो उसको भी हम तेज़ी से अंजाम दे पाएँ। 7 और 12 मई के बीच में दुश्मन ने अपने ड्रोन्स के साथ हमारे क्रिटिकल मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्वेलेंस और टारगेटिंग करने की कोशिश की। एक रोबस्ट और मल्टी टियर ग्रिड बनाया जिसके अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स, आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एसेट्स के दस्ते शामिल थे और इन सब ने मिलकर दुश्मन के सभी ड्रोन्स को बर्बाद किया।
6 मई तक हम दुश्मन की हर एक हरकत पर नज़र बनाए रखी। जवान सारे सतर्क थे। वैसे ही मेरा सेक्शन और अलर्ट हो गया और जवानों को आगाह किया कि दुश्मन कोई भी हरकत कर सकता है। दुश्मन ने 8 मई को ड्रोन से हमला कर हमारे बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया, जिससे हमारे सतर्क जवानों ने बहुत कम समय में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया। दुश्मन ने 10 मई को दोबारा एक गलती को दोहराया, ड्रोन से हमला कर बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया। सतर्क जवानों ने दुश्मन के ड्रोन को मिनिमम अम्यूनिशन के साथ और बहुत कम समय में ड्रोन को मार गिराया। यहाँ गुजरात के कच्छ रीजन में पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन कुछ ही मीलों दूर होती है और इसीलिए हमारी फौज की ट्रूप्स रेगुलरली ड्रिल्स या प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करती रहती हैं कि कैसे जब जरूरत पड़े तो वो बिल्कुल तैयार हो, तत्पर होते हैं अटैक के लिए दुश्मन के टेरिटरी पर। कैमरा पर्सन विकी के साथ गुजरात के कच्छ से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए।